Hello friends, welcome back to the second lecture of your IPCC Costing Chapter 4 Overheads. Now let us start from where we had left and let me give you a brief recap of what we had done in the last lecture. So we had understood what is the overheads, that is the indirect costs which cannot be directly traced to the product but it has to be allocated to the product for the recovery of such costs. There were three there were I had taught you that the overheads need to be first cost allocation. There are three methods. Cost allocation. Allocation is directly attributing a cost to a specific production department. Allocation and then it was apportionment, systematic systematic distribution of the cost to the production departments on a specific basis. It was like if there is a rent and it is to be distributed on the floor area. I had given you homework for writing the page number 4.12 and 13. In page number 4.12, the at the end of the page you will see the table which is the overheads cost and the basis of apportionment. And there are first of all you need to understand that overheads need to be distributed to the production departments on a systematic basis so that it can be recovered from the customers and we can get the actual cost which is to be allocated to the product. There are three methods: cost allocation, direct attribution, cost apportionment, attribution of a cost on a systematic basis, and the third thing which I should make you understand is the cost reapportionment. Now you will say, sir, what is the cost reapportionment? Cost allocation was direct attribution, cost apportionment is distribution of the cost on a systematic basis. Reapportionment is given on the page number 4.9. See, when there are service departments like we can say the canteen department or the maintenance department, it cannot go out and see the there were service departments whose cost need to be apportioned to the production departments on the basis of how much service do they give to the production departments. We had done in the illustration number 1 what is the service which the service departments gave to the production departments and we distributed its cost on the proportionate basis. Now cost reapportionment. समझो अगर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है जैसे कि कैंटीन डिपार्टमेंट, वो बोलेगा कि वो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से सर्विस देता है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सर्विस वापस कोई और सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी देते हैं। जैसे कि कोई खाना खाने आएगा एम्प्लॉय और वो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होगा तो उनको भी देगा, और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से नहीं होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से होगा, तो उसको भी वापस वही खाना देगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये सर्विस डिपार्टमेंट है कि कैंटीन डिपार्टमेंट, वो एक और सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है इन टर्न। जैसे कि एक और सर्विस डिपार्टमेंट है, वो है फर्स्ट एड डिपार्टमेंट। जैसे कि कोई
एम्प्लॉय को कुछ लग गया, उनको खून निकल आया, तो फर्स्ट एड डिपार्टमेंट क्या करेगा कि उनके पास बेसिक डॉक्टर्स होते हैं कि जो मलहम पट्टी कर देंगे और उनको जब तक एम्बुलेंस नहीं आती सर्विस देते हैं थोड़ी बहुत। तो कैंटीन डिपार्टमेंट फर्स्ट एड डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी खाना देता है साथ में। और फर्स्ट एड डिपार्टमेंट अगर कैंटीन डिपार्टमेंट को वाले एम्प्लॉय को अगर कुछ लग गया तो उनको भी फर्स्ट एड देते हैं। तो इंटरनली एक दूसरे को देते हैं ये लोग सर्विस, साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर हम इंटरनली एक दूसरे को दे रहे हैं तो उनका तो ज़ीरो कैसे होगा टोटल कॉस्ट, और उनकी टोटल कॉस्ट वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे देंगे। तो इनके लिए यहाँ पे आता है कि सर्विस डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट्स विच डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। अब होता क्या है कि ये जो रीअपोर्शनमेंट होता है उसमें क्या होता है कि पहले तो सब सर्विस डिपार्टमेंट्स को उनकी जो उनको ओवरहेड्स लगे पूरी कंपनी को उसका अलोकेशन हो गया, अपोर्शनमेंट हो गया ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। बाद में आता है कि टोटल जो हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स कुछ भी हो पी क्यू आर एस टी, जो भी है उनका पहले टोटल कर देंगे कि अलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट कितना होता है। फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट जो होती है वापस रीअपोर्शन होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। आप लोग पेज नंबर 4.16 पे आ जाइए, वहाँ पे है मेथड्स फॉर रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट में क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देनी है, उस तरह की सर्विस डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट ज़ीरो हो जानी चाहिए। देर आर 3 मेथड्स। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब कि सर्विस डिपार्टमेंट्स सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, जैसे कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही सर्विस दे रहा है। या फिर कोई और सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, तो वहाँ पे आता है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिर आता है स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है लेकिन दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, उसमें होगा कि ये जो कैंटीन डिपार्टमेंट है वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले को सर्विस देता है, लेकिन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैंटीन डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता। फिर आता है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, सब एक दूसरे को सर्विस देते हैं, सब सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को देते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस देते हैं। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड्स में और 3 मेथड है कि पहले तो ये 2 बहुत सिंपल है। ये रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में भी अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद बहुत सिंपल हो जाएगा। उसमें है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब आपको लगेगा कि ये इक्वेशन यहाँ पे भी आ गया मैथ्स वाला, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो भी, और अगर आता है तो सोने पे सुहागा है आपके लिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। बोलोगे कि हम सीपीटी वाले हैं या नहीं है मुझे नहीं पता इसमें, लेकिन सीपीटी में एमसीक्यू आता था तो हम ट्रायल एंड एरर करते थे। यहाँ पे वापस ट्रायल एंड एरर आ गया, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रायल एंड एरर नहीं है, एक पर्टिकुलर मेथड है उसको नाम दे दिया है सिर्फ ट्रायल एंड एरर। फिर है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें आपको लगेगा कि हम वापस बच्चे बन गए हैं 12th स्टैंडर्ड से छोटे वाले। आगे जैसे ही एग्जाम्पल्स आएंगे, इलस्ट्रेशंस आएंगे, मैं आपको इन डेप्थ समझाता जाऊंगा।
री रीअपोर्शनमेंट में कितने मेथड्स है? 3 मेथड, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड एंड रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में वापस 3 मेथड्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 50% कोर्स ये चैप्टर का हो गया है, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। अब वापस आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन 1 जो हमने किया था उसमें भी यही था कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं हम एक्चुअल बेसिस पे, और सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विस नहीं देता। तो ये था डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब उसके बाद आएगा नॉन रेसिप्रोकल मेथड, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को देगा सर्विस, दूसरा डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 मैं वापस आपके लिए पूरा पढ़ूंगा और फिर हम सोल्यूशन करेंगे। बहुत ही छोटा एग्जांपल है, देख लेते हैं पहले एक बार। सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A and B and 2 service departments X and Y are as under। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स लेफ्ट साइड में दिए हुए X, Y, A और B, अमाउंट दी हुई है, उनका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, और X डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस देता है डिपार्टमेंट Y, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B को, और जो डिपार्टमेंट Y है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस देता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट X जो है वो कैंटीन डिपार्टमेंट जैसा है, और सर्विस डिपार्टमेंट Y जो है वो हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला है। अब देखना यह है कि शुरू कहाँ से करें। इसमें तो पहले बोल दिया है कि जैसे कि एक हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहला जो दिया हुआ है वहीं से शुरू करो और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ करनी है, पर हम लोग पूरी मेथडोलॉजी से जाएंगे और पूरा समझ के करेंगे। समझो कि जो हमें जो प्रिलिमिनरी फिगर्स दिए हुए हैं 2 लाख, 1,50,000, 3 लाख और 2,50,000, हमें तो दे दिया है कि उनका खुद का एक्सपेंस ये है, पर समझो जो कैंटीन डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है वो हमें बाकी के डिपार्टमेंट्स को देना है, और जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका एक्सपेंस सिर्फ हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देना है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्विस देता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कैंटीन डिपार्टमेंट होता है उसका एक्सपेंस भी हमें रिकवर करना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, इसलिए पहले कैंटीन डिपार्टमेंट मतलब एक्स, उसका सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि सही में इसी तरह हुआ है या नहीं, और प्रपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जो पहले अमाउंट्स दी हुई है X, Y, A और B की 2 लाख, 1,50,000, 3 लाख और 3,20,000। अब सबसे पहले मैंने बोला था कि X डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा सर्विस देता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले करेंगे। तो उसकी अमाउंट है 2 लैक्स। 2 लैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्रपोर्शन में y के लिए 25%, A के लिए 40%, B के लिए 35%। 2 लाख का 25% इज 50,000, 14 to 80,000, 2 लाख का 40% इज 80,000 और 2 लाख का 35% इज 70,000। अब हम वापस सब टोटल करेंगे तो वाई डिपार्टमेंट जो है उनकी पहले कॉस्ट, वाई जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी पहले कॉस्ट थी 1,50,000,
पर वापस उनके एम्प्लॉयज़ जो एक्स में से खाना खा के आए उसकी कॉस्ट उसको 50,000 लगी, तो टोटल उसका हो गया 2 लाख। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी का हो गया 3,80,000 और 3,90,000। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई है वो सर्विस देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को 40% और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को 60%। उसी तरह 2 लाख को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 40% मतलब 80,000 और 60% मतलब 1,20,000 में ए और बी को। सब टोटल हो गया सर्विस डिपार्टमेंट्स का टोटल हो गया नील, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई का, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनकी कॉस्ट आ गई जो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट की बाय द मेथड ऑफ नॉन रेसिप्रोकल मेथड, क्योंकि एक दूसरे को वापस सर्विस वो नहीं दे रहे हैं। अब आ गया रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। पहला जो इलस्ट्रेशन किया था वो था डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड और फिर रेसिप्रोकल मेथड। तो रेसिप्रोकल मेथड में 3 मेथड थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब जो हम ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है वो हम एग्जाम्पल करते करते समझेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है उसमें हम लोग इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस दिए हुए हैं बॉयलर हाउस और पंप रूम के। बॉयलर हाउस का टोटल एक्सपेंस है 3 लाख, पंप रूम का टोटल एक्सपेंस है 60,000। पहले मैं आपको रुक के बता देता हूँ कि ये जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको बुक में लिख के करना है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप पॉज करके लिखते जाएंगे। जो क्वेश्चन है वो पहले आप, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही आप सॉल्यूशन बनाने की ट्राई करेंगे, और फिर जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तब आप आपका खुद का भी सॉल्यूशन देखेंगे कि ये सही हुआ या नहीं, एंड जो भी करेक्शन है वो करेक्शन कर देंगे। और ध्यान रखेंगे कि ये जो मिस्टेक्स है वो एग्ज़ाम्स में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी डिफ़िकल्ट लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखने के बाद कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको एक मार्क करना है कि ये मैंने खुद से नहीं किया हुआ है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 3 में बॉयलर हाउस और पंप रूम का एक्सपेंस दिया हुआ है 3 लाख और 60,000, टोटल 3,60,000। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी है, बॉयलर हाउस और पंप रूम जो है वो है सर्विस डिपार्टमेंट्स। जो बॉयलर हाउस है वो सर्विस देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को भी 60%, बी को 35% और वो सर्विस देता है पंप रूम को 5%। और जो पंप रूम है वो सर्विस देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को 10%, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को 40%, बॉयलर हाउस को 50%। कोई सर्विस डिपार्टमेंट खुद को अगर सर्विस दे तो वो हम गिनते नहीं हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट में खुद की सर्विस तो आ ही जाएगी। अब हम लोग जो सॉल्यूशन करना है उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो बॉयलर हाउस है उसकी कॉस्ट है 3 लाख, वो तो हमें पता ही है। पर मुझे इतना भी पता है कि उसकी सिर्फ 3 लाख कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उसको पंप रूम की भी कुछ कॉस्ट आएगी। अब ये जो पंप रूम है उसकी कॉस्ट 60,000 दिख तो रही है, पर उसकी कुछ और कॉस्ट भी आएगी। कितनी आएगी वो हमें डिटरमाइन करना है। अब बॉयलर हाउस की जो कॉस्ट है वो 3 लाख है, प्लस कुछ प्रपोर्शन ऑफ पंप रूम कॉस्ट, और पंप रूम की कॉस्ट 60,000 प्लस सम प्रपोर्शन ऑफ
बॉयलर हाउस की कॉस्ट। अब अगर हम लोग देखेंगे कि जो बॉयलर हाउस है वो पंप रूम को 5% सर्विस देता है, तो पंप रूम की कॉस्ट में प्लस 5% ऑफ बॉयलर हाउस की कॉस्ट मैं बोल सकता हूँ, और बॉयलर हाउस की कॉस्ट में 3 लाख प्लस 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ पंप रूम। समझ में आया? बॉयलर हाउस की कॉस्ट में 5% ऐड करनी है पंप रूम की कॉस्ट, और पंप रूम सॉरी बॉयलर हाउस की कॉस्ट में पंप रूम की 50% कॉस्ट ऐड करनी है, और पंप रूम में बॉयलर हाउस की 5% कॉस्ट ऐड करनी है। अब सॉल्यूशन देखते हैं कि बॉयलर हाउस को यहाँ पे दे दिया है बी 3 लाख प्लस पंप रूम की 50%। इन्होंने यहाँ पे प्रपोर्शन यूज किया है, आप यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं 3 lakhs प्लस 50%, मतलब 0.5 पंप रूम की कॉस्ट इसकी जगह पे, और पंप रूम में आप लग सकते हैं कि 60,000 प्लस 5%, मतलब 0.05, 5/100 मतलब 0.05 ऑफ बॉयलर हाउस की कॉस्ट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें कि अब दो वेरिएबल्स है, उनको दो वेरिएबल्स को मुझे एक वेरिएबल में लाना है, तो मैं ये जो पंप रूम की कॉस्ट है उसमें 60,000 प्लस 0.05 बी जो है उसकी जगह पे बी इज इक्वल टू जो भी है वो लिख लूँगा, मतलब पंप रूम इज इक्वल टू 60,000, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 60,000 प्लस 0.05 इंटू बॉयलर हाउस का 3 लाख प्लस 0.5 पी। अब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं, तो 60,000 प्लस 0.05 इंटू 3 लाख इज इक्वल टू 15,000। कैलकुलेटर साथ में रखिएगा, एंड प्लस 0.05 इंटू 0.5 पी, मतलब ये होगा आपका 0.025 पी। अब मैं 60,000 प्लस 15,000 मतलब 75,000 प्लस 0.025 पी मेरे पास रहेगा। P इज इक्वल टू 75,000 प्लस 0.025 पी है हमारे पास, तो 0.025 पी है, उसको पी में से माइनस करेंगे, पी मतलब 1 पी हो गया है। ये अज्यूम्ड होता है कि आगे 1 होता है जहाँ पे वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा हो, तो 1 पी माइनस 0.025 पी इज इक्वल टू 0.975 पी इज इक्वल टू 75,000। P इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाई 0.975 हम कर लेंगे तो हमें आ जाएगा 76,000
923 76,923 ये इक्वेशन कैसे करना है? जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्लस सम प्रोपोर्शन ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, और साथ ही में अनदर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट की में हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, जो कि यहाँ पे पंप रूम है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्लस सम प्रोपोर्शन ऑफ बॉयलर हाउस की कॉस्ट। उसमें हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट कॉस्ट हम लोग पहले एक वेरिएबल में ले आएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एक वेरिएबल की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। फिर जो यहाँ पे पंप रूम की हमें कॉस्ट मिल गई है 76,923, उसको हम यहाँ पे बॉयलर हाउस की कॉस्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पंप रूम की कॉस्ट जो है यहाँ पे पी की जगह पे मैं 76,923 लिख दूंगा। उसका 50% प्लस 3 लाख, जो कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3,38,462, क्योंकि यहाँ पे 76,923 का 50% होगा 38,462। अब जो हमें ये बॉयलर हाउस और पंप रूम की कॉस्ट मिल गई है आफ्टर कंसिडरिंग कि एक दूसरे को वो लोग सर्विस दे रहे हैं थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब हमें जो टोटल हम लोग फाइंड करेंगे उसमें हम लोग करेंगे कि अब हम एक दूसरे की सर्विस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें जो फिगर्स मिले हैं वो एक दूसरे को सर्विस देने के बाद वाले मिले। तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को और बी को सर्विस डिपार्टमेंट्स की कितनी कॉस्ट लगेगी उसका हम एक स्टेटमेंट बना लेंगे। द एक्सपेंस विल बी एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज अंडर। ए और बी को बॉयलर हाउस का जो टोटल कॉस्ट है 3,38,462, उसका प्रोपोर्शनेट ए और बी को जो भी है उस हिसाब से। बॉयलर हाउस का 60% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को 35% है। तो 3,38,462 का 60% ए को जाएगा, 35% बी को जाएगा, और पंप रूम का 76,923 जो है वो हमें देना है ए और बी को 10% और 40% के रेशियो में। तो 76,923 का 10% ए को जाएगा एंड 40% बी को जाएगा। सिंपल है, ये बिल्कुल टफ नहीं है। सिर्फ इक्वेशन बनाना है कि खुद की कॉस्ट प्लस सम प्रोपोर्शन ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, एंड फिर हमें एक वेरिएबल में ले आना है पूरा इक्वेशन, एंड फिर जो फिगर मिलेगा कोई एक वेरिएबल का वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू फाइंड आउट द अनदर वेरिएबल। अब हमें जो है वो इलस्ट्रेशन 5 करना है, और ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें हम पहले थियरी रीड कर लेते हैं। Under this method, service departments' costs are distributed to other service and production departments on agreed percentages, and this process continues to be repeated till the figures of service departments are either extinguished or reduced to small a figure। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट है वो हम जो अदर सर्विस डिपार्टमेंट को वो सर्विस देता है उस हिसाब से पहले सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को देते जाएंगे और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। मतलब पहले की
कॉस्ट दूसरे को भी देंगे और दूसरे की कॉस्ट पहले वाले को भी देंगे, और ये तब तक करते जाएंगे तब तक जब तक किसी एक या दोनों डिपार्टमेंट में कॉस्ट ज़ीरो नहीं हो जाती या फिर बहुत ही स्मॉल फिगर नहीं हो जाता तब तक। अब हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। PH लिमिटेड is a manufacturing company having 3 production departments A, B and C and 2 service departments X and Y. The following is the budget for December 20x8. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B और C है और सर्विस डिपार्टमेंट X और Y है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 1 lakh, 2 lakh, 4 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively for A, B, C, X and Y. Direct wages are 5 lakhs, 2 lakhs, 8 lakhs, 1 lakh and 2 lakh respectively for A, B, C and X and Y. हमें दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट इज 4 lakhs, पावर इज 2,50,000, depreciation is 1 lakh and overheads cost is 9 lakh. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एरिया इन स्क्वायर फीट, कितना स्क्वायर फीट एरिया कौन ऑक्यूपाई कर रहा है। ए, बी, सी, एक्स एंड वाई है। 500 स्क्वायर फीट ए ऑक्यूपाई कर रहा है, 250 स्क्वायर फीट बी ऑक्यूपाई कर रहा है, 500 स्क्वायर फीट सी ऑक्यूपाई कर रहा है, 250 स्क्वायर फीट एक्स ऑक्यूपाई कर रहा है और 500 स्क्वायर फीट वाई ऑक्यूपाई कर रहा है। कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स in rupees lakhs 20, 40, 20, 10 and 10 for all the departments A, B, C production department और X and Y service departments. machine hours, कितने machine hours कौन यूज़ कर रहा है। 1000 hours for A, 2000 hours for B, 4000 hours for C, 1000 hours for X and 1000 hours for Y. हॉर्स पावर ऑफ मशीन जो है वो है 50, 40, 20, 15 एंड 25। अगर आपने जो मैंने होमवर्क दिया हुआ था कि पेज नंबर 4.12 एंड 13 रीड करो, तो अगर ये आपने रीड किया हुआ है तो आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो किस बेसिस पे करना है वो पूरा आपको पता इजीली चल जाएगा। और हमने जो इलस्ट्रेशन 1 किया था उसमें भी काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सिमिलर था। तो जो फैक्ट्री रेंट है, रेंट एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर जो डेप्रिसिएशन है वो हम कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितनी ज़्यादा वैल्यू की असेट उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन, जितनी कम वैल्यू की असेट उतना कम डेप्रिसिएशन। फिर जो पावर है, पावर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना मशीन, जो मशीन है वो कितने घंटे चला और वो मशीन कितना पावर यूज़ करता है। तो दोनों साथ में आया ना कि मशीन कितने घंटे चला और वो मशीन कितना पावर यूज़ करता है। तो उसके लिए हम लोग मशीन आवर्स और मल्टीप्लाइड बाय हॉर्स पावर ऑफ मशीन, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आएगा उस प्रोपोर्शन में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ये 2,50,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा मशीन आवर्स इनटू हॉर्स पावर ऑफ मशीन का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आएगा उस हिसाब से। अदर ओवरहेड्स है, वो हम कोई भी जो हमें दिया हुआ नहीं है कि किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आगे दिया हुआ है तो हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अदर ओवरहेड्स को हम लोग बाकी रखते हैं। अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई कितनी सर्विस एक दूसरे को या फिर डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है वो ए, बी, सी और वाई को सर्विस देता है। एक्स खुद को तो सर्विस देगा नहीं।
40%, 15%, 30% और 10%। सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को अपनी सर्विस 60% देता है। सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है वो खुद की 35% सर्विस बी को देता है और सी को कुछ नहीं देता और वाई को 5% सर्विस देता है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, दैट्स इट। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अब सर्विस डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। एंड कैलकुलेट मशीन आर रेट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। अब हम लोग अगर देखते हैं तो हमें ये जो अदर ओवरहेड्स है वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो मैं सबसे रीजनेबल बेसिस ये होगा कि कितने घंटे फैक्ट्री चली, और सारे डिपार्टमेंट्स मशीन तो यूज़ करते ही है, तो ये मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गई। और कितने घंटे जो हमारी यूनिट है वो कितने घंटे चला, उस हिसाब से मैं अदर ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। आप कोई और भी रीजनेबल बेसिस लिख सकते हैं, लेकिन नोट देना है हमें नीचे कि हमने ये क्यों अज्यूम किया हुआ है कि कौन से बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अदर ओवरहेड्स को। तो मैं अदर ओवरहेड्स को सबसे रीजनेबल बेसिस मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री है और कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो मशीन आवर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। हमें दिया हुआ है कि जो हम लोग ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ये ओवरहेड्स चैप्टर में डिफरेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको नहीं देता है, क्योंकि उनका ही खुद का है, उनको तो देना ही देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दे भी सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने वो यहाँ पे फिगर्स 0 लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ए बी और सी और डायरेक्ट वेजेस में। हम लोग यहाँ पे कोई फिगर लिखना है जो दिया हुआ है वो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे फिगर्स। अब आप लोग ये नहीं बोलना कि सर हमें कॉपी करने को बोल रहे, ये तो सिर्फ क्वेश्चन में से कॉपी करना है। डायरेक्ट मटेरियल्स 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख डायरेक्ट कॉपी कर देंगे हम। एंड डायरेक्ट वेजेस जो है वो है 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। फिर जो फैक्ट्री रेंट है वो है 4 लैक्स और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 50:25:50:50:25:50 में। सो 50 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 50 हो जाएगा 200, मतलब 50/200, फिर 25/200, फिर 50/200, फिर 25/200 और 50/200। 4 लाख को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये जो आप प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करने में हर बार कैलकुलेटर यूज़ करके 4 लैक्स डिवाइड बाय ये जो एरिया इन स्क्वायर फीट है उसका टोटल 2000 होता है।
तो आप लोग ये क्या करते हैं कि 4 लाख डिवाइड बाई 2000 इंटू 500, फिर 4 लाख डिवाइड बाई 2000 इंटू 250, फिर 4 लाख डिवाइड बाई 2000 इंटू 500, फिर वापस 4 लाख डिवाइड बाई 2000 इंटू 250, और फिर वापस 4 लाख डिवाइड बाई 2000 इंटू 500 करते हैं। इससे अच्छा आप लोग कैलकुलेटर में एक बार 4 लाख लिखिए, डिवाइड बाई 2000 लिखिए, इंटू 500 इक्वल टू, आपको आ जाएगा 1 लाख। फिर कुछ प्रेस नहीं करना है, जो 1 लाख फिगर आया है उसको एज इट इज़ रखना है, सिर्फ डायरेक्टली 250 लिख के इक्वल टू करना है, आपको आ जाएगा 50,000। वापस डायरेक्टली कुछ और की प्रेस किए बिना, मल्टीप्लिकेशन कैंसल कुछ प्रेस मत करना, डायरेक्टली वापस मैं मेथड बोल लेता हूँ, 4 लाख डिवाइड बाई 2000 इंटू 500 इक्वल टू, फिर डायरेक्टली 250 इक्वल टू 500 इक्वल टू 250 इक्वल टू एंड 500 इक्वल टू, इतना प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली फिगर्स आते जाएंगे। ये अगर आप कैलकुलेटर पे सीख ले 15 या 20 मिनट्स अभी लेक्चर पॉज करके, या फिर लेक्चर पॉज मत करो, ये जो हम लोग बाकी का जो ओवरहेड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी, उसको इसी मेथड से करो ताकि आपको एग्ज़ाम्स में टाइम वेस्ट ना हो। ये कैलकुलेटर ट्रिक्स बहुत ही ज़रूरी है सीए, हर सीए के लिए। तो आएगा आपका 1,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। यहाँ पे आ गया 1,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। फिर पावर जो है वो हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स के हिसाब से, 1,000 इंटू 50 इज इक्वल टू 50,000। फिर ये 2,000 इंटू 40 इज इक्वल टू 80,000। फिर 4,000 इंटू 20 80,000, 1,000 इंटू 15 15,000 एंड 1,000 इंटू 25 25,000। इस हिसाब से हम लोग को ये हमें रेशियो मिल गया मशीन आवर्स इंटू हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स का। पावर को हमें ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका टोटल होता है टोटल भी 2,50,000 होता है, तो और अमाउंट भी टोटल 2,50,000 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 50,000, 80,000, 80,000, 15,000 और 25,000। यही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये अमाउंट 2,50,000 की जगह पे 5 लाख होती, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होएगा। 5 लाख अगर ये अमाउंट होती तो हम ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लाख को, तो हमारी अमाउंट्स आती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के लिए 1 लाख, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के लिए 1,60,000, ऐसा डबल हो जाता। मतलब 5 लाख डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 50,000 इक्वल टू 80,000 इक्वल टू 80,000 इक्वल टू 15,000 इक्वल टू और 25,000 इक्वल टू प्रेस करेंगे। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन जो कि 1 लाख है उसको कैपिटल वैल्यूज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल वैल्यू है 20 लाख, 40 लैक्स, 20 लैक्स, 10 लैक्स एंड 10 लैक्स। तो टोटल हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा 100। सो 1 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 20 इक्वल टू, फिर 40 इक्वल टू
20 इक्वल टू, ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो हमें हर एक की फिगर मिलती जाएगी। सो 1,00,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 20 आ जाएगा हमारा 20,000। 1,00,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 40,000। 1,00,000, सॉरी ये हमें डायरेक्ट करना है अभी। 1,00,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 20 इक्वल टू, फिर 40 इक्वल टू 40,000, फिर वापस 20 इक्वल टू मतलब 20,000 आ जाएगा। 10 इक्वल टू मतलब 10,000 आ जाएगा, वापस 10 इक्वल टू मतलब 10,000 आ जाएगा। अदर ओवरहेड्स को इन्होंने भी मशीन आवर्स के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, हम लोग भी उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल 9 lakhs है एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है मशीन आवर्स के हिसाब से, तो 1000, 2000, 4000, 1000 और 1000 टोटल हो जाएगा हमारा 9,000। 9,00,000 डिवाइड बाई 9,000 इंटू 1000 इक्वल टू आ जाएगा 1,00,000। 2,000 इक्वल टू मतलब 2,00,000। 4,000 इक्वल टू 4,00,000। 1,000 इक्वल टू मतलब 1,00,000 और वापस 1,000 इक्वल टू मतलब 1,00,000। टोटल हम लोग कर लेंगे, हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। ए बी और सी का टोटल ओवरहेड्स जो है वो है 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 4,75,000 और 5,35,000। अब पहले एक्स का डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक्स का 4,75,000 कितने प्रपोर्शन में वो सर्विस दूसरे डिपार्टमेंट्स को देता है, उस हिसाब से हम लोग 4,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 45%, 15%, 30% और 10%, टोटल आ जाएगा 100%। हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं 4,75,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 45 इक्वल टू, फिर 15 इक्वल टू, 30 इक्वल टू एंड 10 इक्वल टू, तो ये हमें आ जाएगा 2,13,000, 71,250, 1,42,500 और 47,500। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है उसका टोटल आ जाएगा हमारा 5,82,500। इसको हमें वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करना है इन द प्रपोर्शन ऑफ वाई डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को किस प्रपोर्शन में सर्विस देता है। 60%, 35% और 5% टू एक्स। तो इसी हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये फिगर्स आती जाएंगी आपको। फिर अगर हम देखेंगे कि हमने x को पहले ज़ीरो करने की ट्राई की थी, पर उसमें वापस 29,125 आ गया, तो इसको वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 45% इज टू 15% इज टू 30% इज टू 10%। तो इसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे ही हमने पहले 4,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी हिसाब से, और हमें फिगर्स आती जाएगी जो कि है 13,106, 4,369, 8,738 और 2,912। अब हम अगर देखेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट वाई है उसको हमने डिपार्टमेंट वाई की खुद की और एक्स का 47,500 मतलब टोटल 5,82,500 डिस्ट्रीब्यूट करके उसको ज़ीरो करने की ट्राई की थी, पर उसमें वापस 2,912 एक्स का वापस आ गया, तो 2,912 को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स सॉरी ए बी और एक्स को, क्योंकि डिपार्टमेंट वाई जो है वो सी को सर्विस नहीं देता। तो 2,912 वापस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60% इज टू 35% इज टू 5% में। अब हम देखेंगे कि x में वापस 146 आ गया, तो 146 को वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 45% इज टू 15% इज टू 30% इज टू 10% में। और अब देखेंगे कि y में वापस 15 आ गया,
तो 15 वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे y का। तो अब हम 15 को डिस्ट्रीब्यूट करने जाए तो 15 का 60% 9 होता है, 15 का 35% होता है 5.25 एंड 15 का 5% होता है 0.75। पर 0.75 इज इनसिग्निफिकेंट। हमने पहले पढ़ा था ना, ये जो थियरी है उसमें कि फिगर्स इनसिग्निफिकेंट हो जाने चाहिए, आइदर एग्जॉस्टेड और रिड्यूस टू अ स्मॉल फिगर। स्मॉल फिगर मतलब इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, एग्जॉस्टेड मतलब ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे 0.75 नियर ज़ीरो हो गया, तो हम लोग उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे और ये जो 5.25 है उसकी जगह पे 6 लिख लेंगे। तो ये सारा, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स ज़ीरो हो गए। अब आप ये बोलेंगे कि सर अगर ये बहुत बड़ा फिगर हुआ तो हम तो पूरा एग्ज़ाम यही रीडिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, हमारा पेपर तो ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 बार आप लोग करेंगे, बाद में जो भी फिगर है उसको एडजस्ट कर लेना। सो 3 बार रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 2 बार में भी अगर नियर ज़ीरो फिगर हो जाता है तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं होता है 2 बार में तो मैक्सिमम 3 बार तक आपको जाना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको लगेगा सिंपल कि आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, कैलकुलेटर में फिगर्स डालते जाने हैं और आपको अमाउंट्स आती जाएगी, बस फिलअप करते जाओ। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने इससे पहले किया था उसमें सिर्फ एक बार इक्वेशन करना है, फिर एक ही बार रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, बात ख़त्म। अगर आपको स्पेसिफिक बोला गया है कि यही मेथड फॉलो करनी है तो वही मेथड आप फॉलो करेंगे, नहीं तो आपको जो भी सबसे ज़्यादा इजी लगे वो मेथड आपको फॉलो करनी है। फिर हमको थर्ड, ये इलस्ट्रेशन 5 में पार्ट 3 जो है, कैलकुलेट मशीन आर रेट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। तो मशीन आर रेट, हाँ मैं समझ गया। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट वेजेस इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मशीन आर रेट फाइंड करने को बोला है। तो मशीन आर रेट, इनका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि ओवरहेड्स पर मशीन आर कितना एब्जॉर्ब करना है। तो पर मशीन आर, मशीन जितने घंटे चली उस हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को 848 रुपीज़ एंड 18 पैसा पर आर उसको ओवरहेड्स का लगता है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस तो लगता ही है, ओवरहेड्स इतना लगता है। फिर बी का 6,50,000 डिवाइड बाई 2,000 आवर्स और सी का 7,51,282 डिवाइड बाई 4,000 आवर्स। तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाएगा। अब हम एक काम करते हैं कि जो इलस्ट्रेशन 4 है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और लास्ट लेक्चर से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसके आगे जो है वो हम पूरा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है आपको अराउंड पेज नंबर 63 पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सॉरी 63 नहीं, पेज नंबर 62 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है 1। वो आपको पूरा खुद से लिख के पूरा सॉल्व करना है, उसका आंसर भी दिया हुआ है एंड वो हमें नहीं देखना है। और सारे एमसीक्यूज़ एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो एंड इसके बाद होमवर्क में आपके लिए बस ये एक क्वेश्चन ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, सो डोंट वरी। पहले और सेकंड लेक्चर में बहुत टाइम हो गया एंड मुझे पता चला था कि आपके बहुत सारे लेक्चर्स बाकी है,
तो आपने स्टार्टिंग में ये लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा था। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख लीजिए। और ये जो यूट्यूब में लेक्चर्स देखते हैं, मुझे वैसे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं और 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो थोड़ी और स्पीड पे भी ये आप लेक्चर्स देख सकते हैं, ताकि आपका जल्दी लेक्चर ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, तो ये आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए थैंक यू। एंड